ناظرین، ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ رخ کریں گے سب سے پہلے صوبہ پنجاب کا۔ قصور میں انتظامیہ کی نااہلی، آفیسرز کالونی میں گندگی کے ڈھیر، سیوریج سسٹم ناکام ہونے کی وجہ سے گندا پانی جمع ہونے سے علاقہ مکین شدید پریشان ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندہ میاں کاشف سے۔ اس وقت آفیسر کالونی کی بیک سائڈ پر موجود ہوں۔ یہاں پر بات کی جائے تو آفیسر کالونی کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گندگی کے بھی ڈھیر لگ چکے ہیں جن کو کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ اٹھوانے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک رہائشی بھی موجود ہے ان علاقے کے، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ ہم جب سے یہ جوان ہوئے ہیں یہاں پہ یہ گندگی ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے عقب میں جتنا یہاں پہ گند ہے، ہم پانی پیتے ہیں اور کڑوا پانی ہوتا ہے، مچھر اتنا ہوتا ہے۔ شام کے ٹائم جب شام ہوتی جائے تو ہم مچھروں میں ہی گرے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جی آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی جو ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پر آفیسر کالونی کا ہی جو ہے وہ صفائی کا نظام درم برم ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے انتظامیہ کو فوری طور پر جو ہے وہ اس پر نوٹس لینا ہوگا، سیوریج سسٹم کو ٹھیک کروانا ہوگا، جبکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو بھی جو ہے ان سے بھی جو ہے وہ صفائی کروانا ہوگی۔ جی خانیوال پیپلز کالونی میں جگہ جگہ سے سیوریج لائنیں بند ہونے سے سیوریج کا گندا پانی پارک میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکینوں اور پارک میں کھیلنے والے بچے تعفن اور بدبو سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ شیخ طارق۔ جی بالکل، خانیوال میں سیوریج کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے، جگہ جگہ سے سیوریج سسٹم بلاک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں اور علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں پیپلز کالونی خانیوال میں، جہاں پر ایک ہی پارک ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے جو سیوریج سے بھر چکا ہے۔ اسی والے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں۔ عرصہ دراز سے یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے جی۔ یہاں دیکھ لیں آپ، یہ میرے سامنے جو ہے یہ گند کتنا پڑا ہوا، یہ پوری کالونی کا جو ہے نا گند پانی وغیرہ یہیں سے آ رہا ہے اور یہ گراؤنڈ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بچے کھیلتے بھی ہیں، کوئی بعض اوقات جنازہ بھی یہاں پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ تو کہتے ہیں صاف ستھرا پاکستان، صاف ستھرا پنجاب، اور یہ صاف ستھرا پنجاب کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو مطلب ہے کہ شرم آتی ہے، کہیں تو کیسے کہیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے ڈی سی صاحب سے خانیوال سے اور وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز سے، یہ ہماری اپیل ہے کہ اس کو کا کچھ سدباب کیا جائے تاکہ لوگ بیماریوں سے بچیں۔ جیسا کہ آپ نے بات سنی، علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے سیوریج کا مسئلہ اس علاقے کو، پوری کالونی کو درکار ہے، جبکہ میونسپل کمیٹی کی بات کی جائے، میونسپل کمیٹی کے افسران صاحب اچھی کی رپورٹیں ارسال کر رہے ہیں، جبکہ بات کی جائے سیوریج کے نظام کی، یہ پوری جو ہے پیپلز کالونی ہے، عرصہ دراز سے سیوریج سسٹم بلاک ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کو اور بچوں کو کھیلنے کے لیے یہاں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی خانیوال سے مطالبہ کیا ہے اس علاقے کے مسئلے کو حل کروایا جائے۔ جی حکومت پنجاب کی جانب سے صاف ستھرا پنجاب کی مہم بری طرح ناکام ہو گئی۔ کمالیہ شہر کے داخلی راستوں پر گندگی اور کوڑا کرکٹ کے لگے ڈھیروں نے تعفن اور آلودگی میں اضافہ کر دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیں گے اپنے نمائندہ آر جے جاوید بھٹی سے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے صاف ستھرا پنجاب کی جو مہم ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ کمالیہ کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ لگے ہوئے گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے ایک جانب تو تعفن پھیل رہا ہے تو دوسری جانب آلودگی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود شہری ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آبادی ہے، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ کوئی رکشے والے سٹتے، کوئی کمیٹی والے ٹرالیاں آ کے سٹ دیاں، کوئی رکشے کمیٹیاں والے آ کے اتنے گند سٹتے پے آ، کتے شہر چ مارے آ وہ سارے لیا کے اتنے سٹ دیتے آ، وہ بدبو ہور آتی پئی ہے۔ کمیٹی نے اپنے والوں تو گند مکایا شہر کا، تو لیا کے اتنے شہر چ سٹ دیتا۔ آبادی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں اس گل تو۔ جی بالکل، جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے جو گندگی اور مرے ہوئے جانوروں کو بھی ان کی آلائشیں یا مردار جو جانور ہے وہ بھی یہاں پہ پھینک دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو مقامی آبادی کے لوگ ہیں اس تعفن زدہ ماحول میں وہ بھی مشکلات کا ان کو بھی سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعفن اور بدبو کے باعث آلودگی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے جب سے اختیارات سنبھالے ہیں، جب سے کنٹرول حاصل کیا ہے، ان کی بھی کارکردگی تاحال صفر نظر آتی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مقامی اور ضلعی انتظامیہ اس بات کا نوٹس لے اور صفائی ستھرائی کے معاملات کو بہتر بنائے۔ جی
میاوالی میں اسپتال روڈ درختوں سے شہری پریشان ہے. شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانیں گے نمائندہ چودھری محمد آصف سے. جی بالکل، میاوالی کے ہسپتال روڈ پر محکمہ ایکسائز آفس کے سامنے روڈ پر بڑے بڑے سفیدے کے درخت وابڈا کی مین ٹرانسمیشن کی تاروں کو ٹچ کر رہے ہیں، جو کسی بڑے سانے کا سبب بن سکتے ہیں. شہریوں سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. پچھلے 2 سے 3 سال میں کافی دفعہ شکایت درج کرا چکا ہوں کہ جی آپ آئیں موقع پہ، یہ دیکھیں، یہ کسی دن درخت ٹوٹ کے اگر تاروں پہ گر گئے تو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوگا. بجلی کی مین لائن یہاں پہ گزر رہی ہے، 11 کے بھی گزر رہی ہے، تو مہربانی کی جائے. لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہماری یہ مسئلہ حل کیا جائے. یہ بہت بڑا نقصان ہوگا جس دن کوئی بھی درخت ٹوٹ کے مین لائن پہ گر گیا. مین لائن پہ درخت اگر ٹوٹ کر گر گیا تو اب بڑے نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. شہری کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے یہاں پہ جو ہے محکمہ وابڈا کو بارہ اس حوالے سے نشاندہی کی گئی ہے، شکایت درج کروائی گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی محکمہ وابڈا کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جو کسی جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. روڈ پر سے گزرنے والے شہری ہوں یا یہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے ان کی بات کی جائے، سب کے لیے یہ سب کے سروں پر جو ہے یہ منزلات خطرات جو ہے موجود ہیں. اور شہریوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے محکمہ وابڈا کے حکام سے کہ اس امر کا نوٹس لیا جائے اور ان درختوں کی کٹائی کروائی جائے تاکہ شہریوں کے سروں پر منڈلاتے خطرات ٹل سکیں. جی بھلوال کا علاقہ الفضل ٹاؤن عرصہ دراز سے سیوریج اور سٹریٹ لائٹس کی سہولت سے محروم ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے انتخابات کے نزدیک آتے ہیں اور ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. مزید جانیں گے رانا شاہ نواز سے. جی بالکل، بلوال شہر کا انتہائی اہم ترین رہائشی علاقہ الفضل ٹاؤن، یہاں پر سیوریج کا نظام درم برم ہے. عرصہ دراز سے یہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہوئے. یہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہاں پر 1 روپے کا بھی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، اور ان کی اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود. جی بالکل، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الفضل ٹاؤن کے بالکل بہت ہی گندے حالات ہیں. یہاں سیوریج سسٹم بالکل خراب ہے، گلیاں بالکل خراب ہیں، آنے جانے کے لیے بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جی جیسا کہ یہاں کے رہائشی بتا رہے تھے کہ منتخب نمائندوں کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ علاقہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. انتظامیہ اور منتخب نمائندے اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اس طرف خصوصی توجہ دے تاکہ جو الفضل ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کو بھی جو سہولیات ہیں وہ میسر ہو سکیں. جی حبیب آباد بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. لوگوں کا بازار میں آنا جانا کم ہونے کی وجہ سے رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان ہیں. مزید جانیں گے توفیق احمد سے. جی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام الناس کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا بازاروں میں کم آنا جانا رکشہ ڈرائیورز کی مشکلات میں بھی اضافہ کر رہا ہے. میرے ساتھ کچھ رکشہ ڈرائیورز ہیں، آئیے ان کے مسائل انہی کی زبانی جانتے ہیں. مہنگائی نے اتنا وہ کر دیا ہے کہ غریب آدمی کو چکر لگتا ہے، کھڑے رہتے ہیں سارا دن. مہنگائی کی وجہ سے نہ گاہک آتے ہیں، نہ ان کو شہر بازار لے کے آتے ہیں. کوئی آئے گا تو ان کو لے کے جائیں گے نا، بس اس لیے کھڑے بس انتظار کرتے گا اللہ پاک روزی دے گا تو گھر بچوں کے لیے لے کے جائیں گے. آپ نے رکشہ ڈرائیورز کے تاثرات جانے، ان کا کہنا ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہے. وہ حکومتی وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے رکشہ سٹینڈ مہیا کیا جائے تاکہ وہ آسانی سے رکشہ کھڑا کر سکیں، اپنے بچوں کا رزق کما سکیں. محمد پور دیوان میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ایل پی جی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. عوام کا حکومت سے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور ریٹ کنٹرول کرنے کا مطالبہ. مزید جان لیں گے غلام عباس شاہ سے. جی غلام عباس شاہ، مزید عوام کا کیا کہنا ہے؟ اس وقت میں موجود ہوں محمد پور دیوان کے نوائی علاقہ میرے والا میں. سردیوں کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس جو ہے وہ اس کی مہنگائی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی جو ہے مصنوعی قلت بھی پیدا کی جا رہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں ایک شاپ پر اور ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں. غریب بڑے تنگ ہیں، مہنگائی گیس کی زیادہ کر دیتی گئی ہے. وہ سردی کی وجہ کو گیس پال بھی نہیں سکتے، سلنڈر بھی نہیں بال سکتے. لہذا حکومت کو روڈ اپیل ہے کہ ہی طرف توجہ دیں، مہنگائی کو گھٹاؤں. جی تو جس طرح شہری نے بتایا
और मैं यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे इलाके में गैस फी किलो 350 रुपये 350 रुपये फी किलो गैस यहाँ पर अवेलेबल है, मुहैया की जा रही है। मेरी ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि लोग ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। जी। चूनिया आलाबाद में गंदे पानी से सब्जियां और दीगर फसलें कई एकड़ रकबे पर काश्तकार तैयार करने लगे हैं, जिससे शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा लाहिक हो गया है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी नोटिस देने की अपील भी कर दी है। मज़ीद जानेंगे मेहर वकार अनवर से। जी देखें, चूनिया के नवाही इलाका इलाहाबाद में कई एकड़ रकबे पर काश्तकारों की जानब से सब्जियों को यहाँ पर सीवरेज का गंदा और मुजरे सेहत पानी लगाकर उनको तैयार किया जा रहा है, जिसमें शलजम है, बंद गोभी है, गाजर है और दीगर सलाद के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा है। यहाँ से जो है वो सब्जियां तैयार करके पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो मंडी है उनमें भेजा जाता है और साथ साथ जो दीगर इलाके हैं जिसमें इलाहाबाद, चूनिया, छांगा मांगा, इसके गिरदोनवाह की जो बड़ी मंडियां हैं उनमें भेजा जाता है, जिससे शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और डीसी कसूर इसका फौरी नोटिस ले और यहाँ पर काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए और यहाँ पर जो मुजरे सेहत पानी लगाकर सब्जियां तैयार की जा रही है, ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी मुजरे सेहत है, इनसे मुख्तलिफ बीमारियां फैल सकती है। जो यहाँ पर काश्तकार है वो साफ पानी लगाने के बजाय यहाँ पर मुजरे सेहत पानी लगाकर जो है वो सब्जियां बड़े रकबे पर तैयार कर रहे हैं। जी। सराय मुगल के नवाही इलाके के करीब गुजरने वाली निकासी ड्रेन बंद हो चुकी है। बारिशों के मौसम में फसलों में पानी जमा होने से हर साल लाखों की फसल डूब जाती है। ड्रेन पर काम करने वाले मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाह वसूल करने लगे हैं। मजीद जानेंगे चौधरी आसिफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सराय मुगल के नवाहिया इलाका हल्ला मनेस के साथ से गुजरने वाली निकासी ड्रेन पर मौजूद हूँ, जिस ड्रेन की बुनियाद तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ दौर में रखी गई थी और इसके बनाने का मकसद ये था कि किसानों की फसलों में ठहरा हुआ वाफर पानी इसमें निकास किया जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये आज बिल्कुल नाकाम है और इसके नाकाम होने की वजह से जो फसलों के हर साल नुकसान होते हैं वो मज़ीद मेरे साथ किसान मौजूद है, आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। ਇਹ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਗਾਫ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ और दरखास्तां भी दी ने आला काम अगे, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होया। किसानों का कहना है कि कई बार महकमे को एप्लीकेशनें देने के बावजूद भी इसका काम ना हो सका। किसानों ने आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। जतोई में नहरों की बंदिश पर किसान परेशान। ज़मीनों को सैराब करने वाली नहरें 2 माह से बंद हैं। किसान बोर चलाने के लिए महंगा डीजल खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे सज्जाद मलिक से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जतोई के नवाही इलाका हेड लस्कानी पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अलीपुर जो नहर है वो तहसील अलीपुर और जतोई को मुकम्मल सैराब करती है। तो यहाँ से इस टाइम तक भी अगर गंदम की फसल को सैराब नहीं किया गया, अगर टाइम पे पानी नहीं दिया जाता तो गंदम की फसल की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो सकती है। तो ये किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। तो मेरे साथ एक किसान मौजूद है, वो ज़्यादा परेशान नज़र आता है, उससे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है और चावल की सब फसल तबाह हो चुकी है। अब जो बात है फसल गंदम की, अब ना बारिश आई है ना हमारे को पानी दे रहे हैं, बस ये कुर्सी की काशमकाश में है। उधर देखो तो अपना जो है ना DAP खाद की तरफ जाओ तो वो कीमतें बढ़ रही हैं, वो नहीं मिल रही, हमारे को जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं सर। जी, आपने किसान की ज़ुबानी सुना है कि यहाँ पे जो है ना डीजल खाद भी महंगी है, डीजल भी महंगा है और वक्त पे नहरी पानी दिया जाता तो किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाता और गंदम की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता। जी। आपको बताएं कि सर्दियों की ख़ास सौगात साग अपने जोबन पर हर तरफ खिले पीले नीले और सर्दियों की बेहतरीन सौगात साग की आमद का पता देते। साग खाने में तो मज़ेदार होता ही है, मगर साग की कटाई से लेकर तैयारी कैसे की जाती है ये जानेंगे तलंबा से हमारे नुमाइंदा शेख फरहान अली से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तुलंबा में मौजूद हूँ और मेरे कब में आप सरसों के पीले फूल और साग की गंदलें जो हैं वो देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि साग जो है वो किस तरह बनाया जाता है और इसकी जो वैरायटी है वो सबसे अच्छी कौन सी है। मुझे बताइएगा किस तरह साग बनाया जाता है, क्या क्या लवाजमात होते हैं, इसकी सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? वैरायटी इसकी है जी तोरिया, बहुत अच्छी वैरायटी तोरिया, वही मीठा होता है साग। और कोशिश करते हैं जब बनाते हैं जी तो दोस्त अहबाब को बुलाया जाता है, जिस तरह शहर के लोग होते हैं उसमें बहुत पसंद होता है, उन्हें बुलाया जाता है, उसमें डाला जाता है जिस तरह घी होता है देसी, मक्खन वगैरह, ये चाटी की लस्सी हो गई, ये ज़रूरी है। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर ये मकई की रोटी होगी ज़रूरी इसके साथ, अगर ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं, इस वास्ते ये ज़रूरी इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, अगर साग के साथ जो है वो चाटी की लस्सी, मक्खन और मक्की की रोटी हो तो साग खाने का जो है वो मज़ा दुबाला हो जाता है। जी जलालपुर भटिया में धुंध का राज है हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा आसिम अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर भटिया में। अगर मैं बात करूँ धुंध की तो एक बार फिर जो है वो इलाका जलालपुर भटिया को जो है वो धुंध ने अपनी मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया है, जिसके बायस जो है वो हद निगाह इंतहाई कम रह चुकी है। अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक की तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो धुंध के बायस जो है वो शदीद मुतासर हो रही है, जिसके बायस जो है वो ड्राइवर हजरात और मुसाफिर हजरात को जो है वो सफ़र करने में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ मोटरवे की तो मोटरवे को जो है वो लाहौर इस्लामाबाद जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो पिंडी बंटिया इंटरचेंज, खान का डोगरा और कोट सर्वर इंटरचेंज से जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जो है वो ड्राइवर हजरात, मुसाफिर हजरात जो है वो सफ़र करने में उनको जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस की जानब से बार बार शहरियों और ड्राइवर और मुसाफिर हजरात को एक ही हिदायत की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करे, अगर सफ़र ज़रूरी हो तो टोलियों की शक्ल में जो है वो सफ़र करे, गाड़ियों के दरमियान जो है वो मुनासिब फासला रखे, फोग लाइट्स का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करे ताकि धुंध की वजह से जो हादसात रोनुमा होते हैं उनसे बचा जाए और मुसाफिर हजरात जो है वो महफूज तरीके से जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। जी रहीम यार खान मोटरवे पर ओवरटेकिंग और ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, मोटरवे पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम भी जारी है। मजीद देखेंगे उज़ैरुल हक चौधरी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने वाली सुस्त रफ्तार गाड़ियों, ओवरटेकिंग और लेन का गैर मुनासिब इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मोटरवे पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज ने कहा कि मोटरवे पुलिस मुख्तलिफ टोल प्लाजों, बस टर्मिनल्स, मूवी पॉइंट्स पर लोगों में आगाही मुहिम जारी रखे हुए है। टोल प्लाजा, बस टर्मिनल और मुख्तलिफ अड्डों पर हम ब्रीफिंग दे रहे हैं ताकि जो छोटी गाड़ियां हैं वो किसी दिक्कत के बगैर अपनी मंजिल मकसूद तक आराम से पहुंच सके। अवाम नास से ये रिक्वेस्ट है कि रोड बिहेवियर और रोड एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ है कि आप सेकंड लेन से इतना। मोटरवे पुलिस की जानिब से जारी मुहिम में तमाम रोड यूजर्स को कानून की पासदारी करने की हिदायत जारी की जा रही हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले रोड यूजर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। कैमरामैन सादुल्ला के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। आपको बताएं कि रेनाला, खुर्द शहर और गिरदनवा में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का मशवरा भी दे दिया है। मज़ीद जानेंगे रेनाला खुर्द से अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद उवैस से। जी बिल्कुल, रेनाला को तहसील भर जो है वो इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। अगर बात की जाए तो धुंध के बायस जो है वो हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। इसके साथ साथ धुंध और शदीद सर्दी जो है वो इसमें खून को जो है वो जमा देने वाली सर्दी बरकरार है। रेनाला को तहसील भर में इस वक्त जो है वो शदीद सर्दी की लपेट में है। इस हवाले से जब हमारी मोटरवे पुलिस हकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि घर से जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से ना निकला जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से बिल्कुल जो है वो गुरेज किया जाए। इसके साथ साथ जो है वो अगर घर से निकले तो जो है वो अपनी गाड़ी में फोग लाइट का इस्तेमाल करें, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जो है वो मुनासिब फासला रखा जाए। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि सर्दी से बचने के लिए गर्म जो है वो स्वेटर और चद्दर और गर्म जो है वो मलबूसात का इस्तेमाल किया जाए और सर्दी की शिद्दत से जो है वो बचने के लिए गर्म जो है वो चीज़ें खाई जाएं, जिसमें सूप पिया जाए और इससे ताकि जो है वो हम सर्दी की शिद्दत से भी बच सकें और जो है वो मुख्तलिफ पैदा होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके। जी
खैबर पख्तूनख्वा में रुख करेंगे उगी का। उगी में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लकड़ियों की कीमतें भी आम लोगों की दस्तरस से बाहर हो गईं। लकड़ी की कीमतों से शहरी परेशानी से दो चार हैं। मजीद जानेंगे आसिफ खान से। जी, उगी में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ जो बालन लकड़ है उसकी कीमत में भी बड़ी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है और लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जो ही नवंबर के बाद शिद्दत होती है सर्दी की तो लकड़ की कीमत बढ़ जाती है। तकरीबन 250 रुपये मान लकड़ी की कीमत बढ़ चुकी है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है गैस की लाइन बिछाई हुई है मेन लाइन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ना बिछाने की वजह से लोगों को मुतबादल ईंधन नहीं मिल रहा और लकड़ी की जो है किल्लत भी पैदा हो रही है, जंगलात भी तबाह हो रहे हैं, माहौलियाती आलूदगी भी फैल रही है। तो हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि वो मुतबादल ईंधन फराहम करे ताकि ये लकड़ी और जंगलात की बचत हो जाए। आजकल लकड़े 700 तक तकरीबन मेरे ख्याल में आजकल लकड़ फरोख होता है फी मन। लोग बहुत गरीब लोग हैं, अपने वास्ते आटा खरीदे, चीनी खरीदे या और कुछ मामलात करे। अभी लकड़ी लेना है 750 रुपये बोलता है ना। अहले इक़्तिदार से लोगों ने मुतालबा किया है कि उगी सुई गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। जो महंगी लकड़ गरीब लोग इस वक्त खरीदने पर मजबूर हैं तो उन्हें मुतबादल ईंधन के ज़राए मिलने के सबब ये जो लकड़ हैं, जंगलात हैं, ये भी महफूज रह सकेंगे। सुबह सिंध से आपको बताया अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ ही हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं, जिसके बायस गरीब तबके को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेंगे आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, जिस तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है तो हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। हैदराबाद में अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की तो टमाटर 200 रुपये किलो, लहसुन 800 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो, लीमू 500 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ एक सब्ज़ी मार्केट में जहाँ कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हम बात करते हैं एक सब्ज़ी फरोश से, तो उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या वजूहत है कि सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है। सर वजूहत ये है कि सब्ज़ियाँ आगे से ही महंगी आ रही हैं। मेन मंडी हाला नाका मंडी जो है वहीं पर ही बहुत महंगी बोली लग रही है, जिसकी वजह से सब्ज़ियों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। और किराया वगैरह लगे, ऊपर का जो खर्चा आता है, किराया आता है, मजदूरी आती है, इनको लगाने के बाद सब्जियों के रेट और डबल हो जाते हैं, इसलिए महंगाई वजह बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, हमने जिस तरह बात की एक सब्ज़ी फरोश से तो उनका कहना है कि किरायों में इजाफा हुआ है और कमीशन एजेंट की जानिब से पीछे से सब्जियाँ महंगी आ रही हैं, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही कंदकोट में लंडा बाजार सज गए हैं। शहरी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गर्म स्वेटर्स खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानेंगे फरमान अली से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दियां आते ही कंदकोट के लंडा बाज़ार यहाँ पर सज गए हैं और कंदकोट के शहरी बच्चे, बूढ़े और बच्चे यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं गर्म कपड़ा ख़रीदने के लिए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है लुंडा बाज़ार के, उनसे पूछते हैं कि इस साल जो है ना लुंडा बाज़ार के रेट और कीमतें कितनी हैं यहाँ पर। जी रेट और कीमत जो है वो तो अभी कम है, मगर महंगाई की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है, मगर फिर भी लोग आ रहे हैं अपने पसंद की ख़रीदारी करते और जो भी पसंद करके वो सामान लेके जा रहे हैं। बाकी महंगाई की वजह से थोड़ा रेट बढ़ गया है, इसकी वजह से थोड़ी कम आ रहे हैं। बाकी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, काम जो है ना हो रहा है। जी, जैसे कि आपने दुकानदार की बातें सुनी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर रेट तो कम है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना कंदकोट के शहरी जो है ना कुछ मायूस दिखाई दे रहे हैं। हम हुकूमत सिंध से ही मुतालबा करते हैं कि महंगाई पर कुछ कंट्रोल किया जाए ताकि हमारे जो लुंडा बाज़ार और भी सज सके। जी, दादू शहर को जो ही शहर से मिलाने वाली सड़क कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे मुबीन पनहौर से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू से, जो निकलता है जोही के लिए लिंक रोड कई गाँवों को मिलाता है और मुख्तलिफ जगहों को हो कर के ये जाता है जोही तक। और ये जो रोड है ये खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये जो रोड दादू से निकलता है कई गाँव से होके जोही तक पहुँचता है, मगर ये कई सालों से खस्ता हालात में है। हम हुकूमत
हुकूमत से अपील करते हैं कि ये रोड नया कर दे कि यहाँ की तकलीफ दूर हो जाए। अपने इलाका मक्कीन की बात सुनी, उसका भी कहना था कि इस सड़क को जल्द से जल्द तामीर कराया जाए और इलाके जो जाने वाले जो शहर जाने वाले जो लोग हैं उनको भी सहूलत मिले और जो बराड़ी के जो लोग हैं वो जो शागिर्द जाते हैं उनको भी सहूलत मिले, तामीर कराया जाए। जी।